Good morning, children. Today we will discuss on collision, elastic collision, inelastic collision, perfectly inelastic collision, super elastic collision, head-on collision, and oblique collision. Give important characteristics and examples of different types of collision. So firstly, I will tell you about what is collision. A collision is said to occur between two bodies either if they physically collide against each other or if the path of one is affected by the force exerted by other. For a collision to take place, the actual physical contact is not necessary. collision मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कोई भी दो ऑब्जेक्ट का टकराना. ठीक है. जब कोई दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं. जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराएंगे तो एक दूसरे पे क्या करेंगे? फोर्स एक्सर्ट करेंगे. That is called collision. So there are two types of collision. First is elastic collision. Second is inelastic collision. So what is elastic collision? If there is no loss of kinetic energy during a collision, it is called an elastic collision. Okay. So characteristic of elastic collision: momentum, linear momentum is conserved. Total kinetic and total energy is also conserved. Total kinetic energy is conserved. Forces involved during the collision are conservative. It means it does not depend on the path. And the mechanical energy is not converted into heat, light, sound, etc. Examples: collision between subatomic particles, collision between glass balls, etc. And inelastic collision: if there is a loss of kinetic energy during a collision, it is called an inelastic collision. And characteristic of inelastic collision: the momentum is conserved, total energy is conserved, the kinetic energy is not conserved. Only linear momentum is conserved in inelastic collision, and total energy is also conserved, but the kinetic energy is not conserved in inelastic collision. Some or all of the forces involved are non-conservative. A part of mechanical energy is converted into heat, light, sound, etc. इलास्टिक कोलिशन में क्या था? मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू हीट, लाइट, साउंड एक्सेट्रा. बट इन इलास्टिक कोलिशन मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, लाइट. देयर आर एग्जांपल्स: कोलिशन बिटवीन टू व्हीकल्स, कोलिशन बिटवीन अ बॉल एंड फ्लोर. नॉर्मल कोलिशन हम देखते हैं, दैट इज द इनइलास्टिक कोलिशन. And third part is perfectly inelastic. If two bodies stick together after the collision and move as a single body, अगर दो बॉडी टकराते हैं और दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और वो दोनों बॉडी एक सिंगल बॉडी से बिहेव करते हैं टकराने के बाद, that is called perfect inelastic collision with a common velocity, then the collision is said to be perfectly inelastic collision. In such collision, momentum is conserved but the loss of kinetic energy is maximum. हम एग्जाम्पल दे सकते हैं. आप किसी बुलेट को किसी ऑब्जेक्ट पे या वुडन ब्लॉक पे चलाते हो, फायर करते हो, तो वो वुडन ब्लॉक में वो बुलेट धंस जाएगी और एक बॉडी जैसा बिहेव करेंगे. ठीक है. तो एग्जाम्पल हम बहुत सारे सकते हैं. अगर आप कोई मड को, कीचड़ को दीवार पे फेंकते हो, दीवार पे चिपक जाएगी. और एक मैन जोर से जंप करता है ट्रॉली पे, और ट्रॉली पे बैठ के ही मोशन करना स्टार्ट कर देता है. That is also an example of perfectly inelastic collision. ऐसे ही और types हैं super elastic और explosive collision. In such a collision, there is an increase in kinetic energy. This occurs if there is a release of potential energy on an impact. क्या बोल रहा है? जब सुपर इलास्टिक और एक्सप्लोसिव कोलिशन क्या होता है? जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होती है. ओके. एग्जाम्पल, हम पटाखे फोड़ते हैं. सो बर्स्टिंग ऑफ अ क्रैकर व्हेन इट हिट्स द फ्लोर फोर्सफुली. आप देखो बहुत बड़े हम पटाखे फोड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े बॉम्ब, तो हमारे थोड़ा सा जमीन हिल जाता है. ठीक है. दैट इज द सुपर इलास्टिक और एक्सप्लोसिव कोलिजन. अब आते हैं हेड ऑन और वन डायमेंशन कोलिजन. इफ द कोलिजन इन विच द कोलाइडिंग बॉडीज move along the same straight line path before and after the collision. क्या बोल रहा है आपको?
अगर कोलिजन होता है और उसमें जो दो बॉडी कोलाइड करते हैं और दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही पाथ में मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं, टकराने के पहले भी एक ही डायरेक्शन में थे, टकराने के बाद भी उन लोग एक ही डायरेक्शन में और एक ही पाथ में मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशन कोलिजन। अब आते हैं टू डायमेंशन कोलिजन। If two bodies do not move along the same straight line path but lie in the same plane before and after the collision, the collision is said to be oblique or two dimension collision. Example, कैरम खेलते हो, कैरम में क्या होता है, कोई भी दो स्ट्राइकर्स आप किसी भी गोटी को मारते हो, दोनों कोलाइड करते हैं, वो जो गोटी वो ये जाती है और वो स्ट्राइकर इस तरफ, दोनों सेम प्लेन में बट डायरेक्शन डिफरेंट है, पाथ डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड टू डायमेंशन। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले डिस्कस करना है व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज इन वन डायमेंशन एंड कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज आफ्टर द कोलिजन and discuss also on the special cases. So firstly, we will consider two objects for elastic collision in one dimension. So consider two perfectly elastic bodies A and B of masses m1 and m2 moving along the same straight line with velocity u1 and u2 respectively. अब देखो कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, वो चल रहे हैं u1 और u2 स्पीड से, अचानक टकराते हैं। तो कब टकराएंगे, जब u1 की स्पीड u2 से ज़्यादा होगी, दैट इज ड्यूरिंग कोलिजन। अगेन आफ्टर कोलिजन इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v1 and v2 respectively. The two bodies will separate after the collision. In this case v2 is greater than v1. अब वो नहीं टकराएंगे, इसका मतलब क्या है, v2 की स्पीड, सो v2 जो है वो v1 से ग्रेटर है। एज लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, यू नो अबाउट लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन equal to the total linear momentum after collision. So it will be m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. अब हम u1 और v1 को ट्रांसफर कर एक साइड लाएंगे, v2 और u2 एक तरफ कर ले। ट्रांसफर करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं m1 u1 माइनस v1, m2 ब्रैकेट के बाहर v2 माइनस u2. So kinetic energy is also conserved in elastic collision. So half m1 u1 square plus half m2 u2 square is equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. इसका मतलब क्या है, टकराने के पहले का काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टकराने के बाद का टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसा हो, कंजर्व्ड होगा। हम दोनों साइड से हाफ कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। So finally we got m1 u1 square minus m1 v1 square is equal to m2 v2 square minus m2 u2 square. a square minus b square का फॉर्मूला लगेगा m1 कॉमन लेने के बाद, so it will be a u1 plus v1 u1 minus v1. यहाँ पे भी सेम a square minus b square का फॉर्मूला m2 in bracket v2 plus u2 in bracket v2 minus u2. ये इक्वेशन 1 होगा, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ध्यान सुनना बच्चों, हम इलास्टिक कोलिजन करें इन वन डायमेंशन। सो इलास्टिक कोलिजन हैज़ अ टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड। ओके, दोनों लॉ से हम ये मेन इक्वेशन निकालें और एक ये। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे। इससे अगर इसको डिवाइड करते हैं हम, क्या मिलेगा, m1 u1 माइनस v1 कट जाएगा। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, m2 v2 माइनस u2 कट जाएगा। फाइनली वी गॉट u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2. सो अगेन वी विल ट्रांसफर
u1 u2 in left side and v1 in right side. So finally we have u1 minus u2 is equal to v2 minus v1. आपको पता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बिफोर कोलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए आफ्टर कोलिजन. देखो आप यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ए का किसके रेस्पेक्ट में, 2 के बिफोर कोलिजन. यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट ए का रिलेटिव वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए. ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए आफ्टर कोलिजन. जो माइनस हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में होगा. आप ये भी बोल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बच्चों, जनरल एग्जाम में आता है. सो वी विल राइट द स्टेटमेंट. हेंस इन एन इलास्टिक वन डायमेंशन कोलिजन the relative velocity of approach before collision is equal to the relative velocity of separation after the collision. मतलब पहुंचने के पहले का रिलेटिव वेलोसिटी टकराने के बाद अलग होने की रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल होती है. तो आपको ये पूछ सकता है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड इट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन वन डायमेंशन in one dimension elastic collision. Now secondary we have to calculate or derive the expression for velocity of these bodies after the collision. From equation number 4 v2 will be u1 minus u2 plus v1. So transfer कर दो तो v2 की वैल्यू आ गई. Putting this value of v2 in equation number 1, जो इक्वेशन था हमारा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से निकला था, उसमें हम v2 की वैल्यू पुट करेंगे. जहाँ भी v2 था हम पुट कर दिए यहाँ पे. फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे. ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1. ये होगा. अब कुछ कैंसिल होंगे, m1 u1 नहीं होगा, m2 u2 नहीं होगा. कुछ कैंसिल होगा तो करते हैं, नहीं होगा तो नहीं करेंगे. देखते हैं यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है. तो m1 u1 और m2 u1 को एक तरफ ट्रांसफर करते हैं तो u1 कॉमन निकलेगा, तो इट विल बी m1 माइनस m2. m2 u2 ये ज़रा क्या हो जाएगा प्लस, तो m2 u2 प्लस m2 u2 2m2 u2. तो m1 v1 प्लस m2 v1 दोनों में कॉमन क्या है, v1 कॉमन निकल गया. यहाँ मिला m1 प्लस m2. सबको ये जो ब्रैकेट है मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो m1 प्लस m2 इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा. सो फाइनल एक्सप्रेशन फॉर v1 इज दिस. सो अगेन we will put the value of v1 from here. So what is the value of v1? इन दोनों को ट्रांसफर कर दो इस तरफ, तो होगा ये v2 minus u1 plus u2. Again we will put the value of v1 in equation number 1. So finally we got v2 is equal to m2 minus m1, m1 plus m2, but here will be a u2 plus 2m1 upon m1 plus m2, it will be a u1. So this expression for v1 and this expression for v2. Okay dear children, thank you very much and have a nice day.